So this is the memento that you are rewarded with when you qualify as IAS, IPS, or IFS. And along with that, your entire fee is rewarded back. And our age-old tradition that we present you with a 100-plus-year-old point. Okay. So just to motivate you, uh, and we have amongst us rank 35, Abhinav Jain. Okay. So the students who are belonging to the April batch, to them, we'll have the classes starting from 27th. We are planning to do an intro lecture today, but it somehow happened that Abhinav is here. Please, your round of applause for his marvelous achievement. And so the people from April batch, we are planning to have an intro class today, but coincidentally, Abhinav had some bandwidth available because he is still employed as IRS, and he has to rush back tomorrow back to the training. So we requested him to get it today, and you are lucky enough to have your first class as an interaction with a doctor. Please try to make the best out of it. And so with Abhinav, he was a member of our first online batch that we were planning during the COVID, and we were quite reluctant actually going into online. That's what I have always said. But this year, all our gens, they are from the online batches, rank 3, 35, even the Gaurav Opal, who scored 300 in Anthro. So they are all from our online batches, and I have to personally thank Abhinav also because he was, I'll say, he was not a test subject, I'll say. He was one of the first who helped us set up the protocols for online answer evaluation. Okay. I was going through the chart once I got to know about his result, and there I could see so many exchange of answers. ये करा है, फिर दोबारा से भेजा, फिर दोबारा से भेजा. And that is the way you get to being here. So now over to Ed, sir. So बच्चा लोग, Abhinav has brought us laurels. So first thing is that ये कॉइन जो है हम हर बार देते हैं हमारे यहाँ जो भी हमारे टॉपर आते हैं. दिस इज कॉइन ऑफ 1903, 1 rupee coin. This is a symbol of regard that we have for our students. And then we have the memento, rather my favorite, Shiva, my friend. So हर टॉपर्स कभी कभी आते हैं, और ऑप्शनल के लिए तो वैसे भी आप जितने यू हैव सीन ऑल द एडवर्टीजमेंट्स, एवरीबडी दोज हु आर गिविंग, मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर फ्रॉम देयर इंटरव्यू IGP, है ना. एक इंस्टीट्यूट है जिनके हैं लेकिन वो इंग्लिश में नहीं है. मैथ्स वाला है कोई पॉलिटिकल साइंस वाला है, बट बिलीव नहीं होता कि वेदर जो एस्पिरेंट्स हैं जो सक्सेसफुल हैं वेदर दे रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंस्टीट्यूट. क्योंकि कोई भी इंटरव्यू में ये बोलता नहीं है कि मैं वहां गया था, मैंने कोचिंग की थी, मेरे को फायदा हुआ. कोचिंग की तो फुल स्टॉप है. वी आर लकी दैट वी हैव पीपल विद अस. मुझे लगता है कि एंथ्रो पढ़ने का कुछ फायदा होता है, कुछ ह्यूमनिस्टिक ट्रेड्स आ जाते हैं, एंड नॉट ओनली हियर बट थ्रू आउट द लाइफ. अगर आपने प्रोफेसर साहे की वीडियो देखी है तो वो कहते हैं कि यू कैन एंटर एंथ्रो बट यू कैन नॉट एग्जिट. जा नहीं सकते. वो माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि थ्रू आउट योर लाइफ व्हेनेवर यू थिंक ऑफ टेकिंग एनी एक्शन
you remember your knowledge of anthro. मैं तो कहता हूँ एंथ्रोपोलॉजी इज वे ऑफ लाइफ। तो जो जो आप लोग आगे बढ़ोगे, नेक्स्ट इज योर टर्न नेक्स्ट ईयर, आई बीन टेलिंग माय स्टूडेंट्स। खैर मैं तो बोलता रहता हूँ, अब फिलहाल इट इज द डे ऑफ अभिनव, एंड स्क्वीज हिम एज मच एज यू कैन and learn from his experiences. Not blindly follow, see whatever you can adapt as per your nature and your experiences. Be selective. आंख मूंद के नहीं कि हाँ टॉपर ने ये किया, नहीं हो सकता। आपका स्वभाव आपके साथ है, आपके एक्सपीरियंस है आपके साथ, बट ट्राई टू गेन एज मच एज यू कैन। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, ठीक है अभिनव? Sir, sorry, just on a funny note, are you now happy with the performance of online batches? So I was never in favor of online before COVID started. मेरे लिए क्लास मीन्स कोचिंग मीन्स ऑफलाइन, मीन्स आई कांटेक्ट, मीन्स यू हैव a doubt clear immediately. You finish your doubts, right answer, get evaluated. But COVID, it made me learn how to live with offline, online. और ऑनलाइन को भी हमने इस तरह से बना दिया कि ऑफलाइन का बेनिफिट उनको नजर आए उसमें। बट इसमें फर्क क्या है कि ऑनलाइन में ओनस लाइज ऑन द स्टूडेंट, ऑफलाइन में तो आई कैन फोर्स यू कि भैया यहाँ बैठ के पढ़ो उसके बाद जाओ। ऑनलाइन में बहुत कम बच्चे होते हैं, से अराउंड 30% जो सीरियस होते हैं। तो क्लास फिनिश होते ही उनको वॉशरूम याद आने लगता है, उनको चाय याद आने लगती है, दुनिया भर के काम याद आने लगते हैं। आई बीन टेलिंग यू कंसिस्टेंसी एंड हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन। बाकी भाई अभिनव। First of all, good afternoon to every one of you, and congratulations to enter the UPSC Civil Services exam cycle. ये फर्स्ट डिसीजन ही सबसे डिफिकल्ट होता है कि यू टेक द डिसीजन टू एंटर द साइकिल, बट हमें यहाँ पे रुकना नहीं है, वी वांट टू एग्जिट द साइकिल। फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो माई सेल्फ अभिनव जैन। I have done electronics and communication engineering. Thereafter, I worked in Bangalore as a software development engineer. And as Vatsar said, I joined the first online batch of the anthropology coaching with the Vatsar Institute. And in 2021 attempt, I got 268 rank. And currently, I am posted as Indian Revenue Services Officer. And this year, I got 35th rank. And soon will join the Indian Administrative Services. So basically, we divide our session into 3 parts. First, I will discuss the detailed strategy of the anthropology and my personal takeaways from the batch, sir, as well as the challenges that we face while preparing the anthropology. Secondly, I will be happy to take some time on the general studies subject. In the general studies, writing papers, I successfully increased my marks from 821 to 850, which helps me to ace this exam. And finally, I will take questions on anything that you want apart from the syllabus and the subject. So, first, let me start with the question. Can anyone tell why you take the anthropology? Most of you are maybe engineers. Why you take the anthropology as optional subject? Subject interest 1. Scoring. Good resources and guidance. And I think that is the most of the subject is static, other than the tribal part. So it helps you better prepare the subject before the exam, so that you don't have to think on your tips in the exam. So that is the part. Tribal portion is also, it is current related, but not that much. If you prepare your data beforehand, you are done with it. So you're not going to get any question that is out of the box. I think so. मतलब, apparently this few these years थोड़े से बाहर से आ रहे हैं, but okay. Yeah. So first, I took the anthropology optional. I was an engineer. I am an engineer, and I was zero in anthropology. I don't know anything about anthropology before coaching from the batch, sir.
So I took anthropology because of the reasons. First, it is a scoring subject. Second, the syllabus is concise, but it cannot be completed in 3 to 4 months as we often think. Syllabus is concise, and another thing is it has a overlap with the general studies subjects as well, particularly in GS1 and in GS3. Also in internal security, you can put the issues of the ethnicity and others. So these were my points due to which I took the anthropology as a subject. So now, as we know, there are the two papers in anthropology, paper 1 and paper 2. And paper 1 is more on the static side and paper 2 is more on the dynamic side. So first, let me tell the sources, my approach to prepare the notes, whether notes prepare is important or not, but to prepare in the notes, and then value addition thing, but how I did the value addition. So starting with the source, my first source was the coaching from the Ved sir. So during the coaching from the Ved sir, I meticulously follow all the material that sir provided. The first book that I read is In Search of Ourselves, and I remember at that time in our group there were discussion on reading Ember and Ember. For the socio-cultural anthropology, we should study and read Ember and Ember, but I never go for that. So for socio-cultural part, I read In Search of Ourselves book, and so first of all, first main thing is the syllabus. So you should learn the syllabus by heart. In anthropology, each point of the syllabus you should learn by heart, each topic. For example, in the kinship, there is a term given as kindred and filiation and complementary filiation. So you should know each term by heart. I still remember that topic 2.1 is culture, 2.2 is society. So you should know the complete syllabus, because whenever some current news comes to you, or whenever some important material from the WhatsApp group of Wetzer comes to you, so your mind points to that and you segregate the material as per your syllabus. So first learn the syllabus. Sorry for my writing because I am a lefty. So learn the syllabus. We start with the socio-culture. In socio-cultural anthropology, just in the institutions part, just follow the Wetzer advice. Make the notes in the question answer format, and if possible, get your answer checked by the Wetzer. This is the first iteration. Don't go for value addition. Don't go for any other online material to add the examples and all these. Just go with the notes and the book provided by the Wetzer for the institutions part. Then theories. Theories are the most important part, and sir always said that while attempting the question, try to attempt the question of the theories, because they give more marks in the theories question. So for that, start with the institute's material. I read a book Upadhyay and Pandey to understand the theories better, and that was also recommended on the sir's WhatsApp group only. Next in socio-cultural are the research methods. In research methods also, some printed notes are being provided by the institute, and sir himself takes the class on the research methods.
So socio-cultural will be covered by these sources. There is no need to go apart from these sources. One important thing is you all must be part of the VED sir's WhatsApp group, and sir put the news and the current affairs of the Anthro in that WhatsApp group. Initially, it is not possible to read all that news, but do one thing: make the folders in your device, in laptop or the iPad, anything, and make the folders like socio-cultural. I use the OneNote socio-cultural, then divide in institutions, then marriage, family, and save those notes in those folders. And if possible, every week read those notes and add the examples in your primary notes. And all the notes should be in the form of question answer only. Question answer means like give the term universal definition of marriage and then write that answer. So this is about the socio-cultural anthropology part. Any doubt regarding the socio-cultural part? You are not from the first batch. You must have. So this is the socio-cultural, and in the paper, but in both the attempts, I attempted the question of the theories. So what is important while writing the answer, we will discuss that after completing the sources. So second is the biological anthropology. In the biological anthropology, we have genetics, then we have Mendelian laws, then concept of race, ecological anthropology, and there is also applied biological anthropology, human growth, and demographics. Fossils, pre-existent fossils. So, starting from the fossils. Regarding the fossils, sir provide the photocopy of some photocopy of the book शायद Butler Janu's The Origin of Man. That is the ultimate source for the fossils, and apart from the sir's material, physical material, and most important thing in the fossils is the way in which the sir gives the answer writing tips. Like you should first give the scientific name of the fossil, then first discovery, and along with the scientist who discover, then geographical distribution. So वैद सर जो फॉर्मेट बताएंगे फोसिल्स उसी में अटेम्प्ट करना. इस बार मेंस में ऑस्ट्रेलोपिथेकस का 10 मार्कर क्वेश्चन आया था. सो आई हैव अटेम्प्टेड दैट क्वेश्चन एंड आई थिंक एग्जामिनर ने आराम से 80-90% मार्क्स दिए होंगे, बिकॉज सर ने एक्सक्लूसिवली हमें एक डायग्राम सर ने बनाया था. सर की एक वीडियो में भी है यूट्यूब पर, जिसमें उन्होंने बनाया था ऑस्ट्रेलोपिथेकस सेडिबा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस से कैसे इवोल्यूशन हुआ. सो आई डेलिबरेटली गेव दैट डायग्राम. इन फोसिल्स पार्ट अटेम्प्ट करना ही है इफ पॉसिबल, क्योंकि फोसिल्स का स्टैटिक क्वेश्चन आता है हमेशा, मोर और लेस स्टैटिक ही आता है. एक दो बार ही इट वाज डायनेमिक एंड इट गिव्स गुड मार्क्स. एंड इन दैट फॉलो ओनली द फॉर्मेट गिवन बाय द सर. एंड इन द फोसिल्स marks is of like diagrams. Make diagrams only. Don't write. Like after this part, give the physical characteristics. In the physical characteristics, make all the things. The mandip from the one more important point that I am currently remembering. जब डायग्राम बनाए थे इन द फर्स्ट आंसर राइटिंग, उसमें मैंने डायग्राम ऊपर नीचे कर दिए थे. फर्स्ट मैंने फीमर बना दिया, देन स्कल, इस तरीके से. देन सर एडवाइसेस की ऊपर से शुरू करो. फर्स्ट यू शुड गिव द क्रेनियल कैपेसिटी ऊपर से नीचे तक, ताकि एग्जामिनर को पढ़ते हुए भी कुछ उसके दिमाग में थीमेटिक इमेज बन जाए उस फोसिल की. फर्स्ट क्रेनियल कैपेसिटी, देन यू शुड गिव द स्कल, देन मैंडिबल, लाइक दिस. सो दीज स्मॉल टिप्स जो सर देते हैं दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड
these are for the fossils. Genetics, there is a class 12th biology book to understand. अगर बिल्कुल ही बेसिक जेनेटिक्स को समझना है, जेनेटिक्स का कुछ भी नहीं आता, क्रोमोसोम्स एंड ऑल दिस, अदरवाइज वो इंस्टीट्यूट में कवर हो जाता है. सेम फॉर द मेंडेलियन लॉज. रेस में यूजुअली the books in the market give a like very cliche definition of the race, but I remember that before 10 days of the exam, mains exam, sir put some definition of the race in the WhatsApp group, and I gave that definition in the exam, so that may help me to get the marks. So again, whatever sir puts in the group, that is the ultimate value addition thing. Race, then ecological anthropology. In the ecological anthropology, important is the here also I remember that I started with the definition of P.T. Baker, Man in the Andes, and that thing is also given by the sir only. You should start as per P.T. Baker. Book is Man in the Andes, Human Responses to the Ecological. There is a line by the P.T. Baker. So I started every question of the ecological anthropology by that line only. Next is the applied. Here in the applied part, in forensic anthropology, again diagrams are important, and if we have done some biological anthropology, we have done. If biological anthropology we have done, sir ने fingerprints and all diagram बनाए होंगे, wolves and वो सारे, तो same, हाँ, तो same you should replicate in the exam अगर question आता है तो same you should replicate. Total 9 diagrams sir ने fingerprints के बनाए थे, same I have replicated in 2021 attempt. So diagrams are more important in complete biological anthropology part. Human growth में graphs है, graphs are the most important. So crux of biological anthropology is give diagrams as much as possible, and in general, main important thing is the diagrams, and follow the answer writing format as given by the sir. Start with a scholar definition, and then substantiate your question, and then give the conclusion. This is for the biological anthropology. Next part in the paper 1 is the archaeological anthropology. In archaeological anthropology, again the format given by the sir, and next thing is the diagrams. Tools, diagram of the tools are most important, and the name of the scholars who have studied. Here there was the recent study by the Professor S.B. Ota and Dr. M.K. Singh regarding some researches in the post-Toba ash remains. So that was also in the group of the institute. So I quoted that study in all the questions of archaeological anthropology. Like I put a special part, recent advances. In most of the answer writings, I put a special part, recent advances, and put whatever recent thing I have regarding that part. So this is this was my basic strategy. So any questions regarding this? It would be better if the session will be interactive, because questions होने चाहिए काफी सारे. रीड किया था तो वो आपने कितना डेलिबरेटली फॉलो किया था, आई मीन उपाध्याय एंड पांडे थ्योरीज के लिए? जैसे सर के जो मटेरियल्स है उसमें बहुत सारे डेफिनेशंस लिखे हुए हैं थ्योरीज के, और हम लोग को सर ने यूनिवर्सिटी ऑफ अलबामा के भी वेबसाइट फॉलो करने के लिए बोली थी रिगार्डिंग सम थ्योरीज. तो उपाध्याय एंड पांडे किस मतलब कौन कौन सी आपने थ्योरीज पढ़ी थी उसमें से, और कौन कौन सी नहीं पढ़नी है? उपाध्याय एंड पांडे में आई थिंक सिर्फ फंक्शनलिज्म तक ही दी हुई है, और शायद कल्चर, पर्सनैलिटी, थॉट भी उसमें दिया हुआ है उपाध्याय एंड पांडे में. तो एक रीडिंग मैंने पूरी लगाई थी, क्योंकि आई वाज न्यू इन दिस थ्योरीज पार्ट. सोशल साइंसेज बैकग्राउंड नहीं था, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था. सो एक रीडिंग उपाध्याय एंड पांडे की मैंने पूरी लगा ली थी टू बेटर अंडरस्टैंड कि उस थ्योरी का मतलब क्या है और वो सब. जस्ट अ रीडिंग, उसमें से ऐसे कुछ अलग से नोट्स वगैरह नहीं, लेकिन बट
thing develop in my mind ki what is the meaning of functionalism, what is the meaning of evolution, what is new evolution. So by reading that book, a basic understanding developed in my mind regarding the different theories. So ultimately फॉर्मेट आंसर राइटिंग का वही रखना है जो सर बताएंगे. स्टार्ट विद द लाइक वी कैन टेक एन एग्जांपल. फंक्शनलिज्म की थ्योरी है. सो इसका इंट्रो मैं जो करता था इन द 20th century in response to the classical evolutionism and थोड़ा बैकग्राउंड देके कि थ्योरी ऑफ फंक्शनलिज्म. हाँ, पहले बैकग्राउंड दे दिया इंट्रो में. देन स्टार्ट विद द स्कूल्स ऑफ थॉट. मैलिनोव्स्की का एक बायोकल्चरल फंक्शनलिज्म एंड रेडक्लिफ ब्राउन का स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म. तो इस तरीके से फिर उसके बाद अलग से की वर्क्स देना. जो फॉर्मेट सर बता रहे हैं कि की वर्क्स में उनकी बुक्स लिख दिया, द आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक एंड इस तरीके से कीवर्ड देके उसके बाद जो उसने क्वेश्चन में पूछा उसके बाद स्टार्ट करो. ये पहले इंट्रो दे ही दो कि मुझे इतना तो पता है कि फंक्शनलिज्म के बारे में कि ये स्कॉलर है, इसके ये की वर्क्स है. उस बुक को तुमने पढ़ा नहीं है, पढ़ा कोई भी नहीं पढ़ेगा इतनी सारी बुक्स को, लेकिन दे दो ताकि एग्जामिनर को लगे कि यू हैव सम अंडरस्टैंडिंग. की वर्क्स के बाद उसके की पॉइंट्स एंड here again important thing is सर ने एक टिप दी थी कि 10 मार्कर आए तो लिमिटेशंस मत देना. मतलब कुछ ऐसे टिप्स सर देते रहते हैं बीच बीच में, तो वो टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जैसे मुझे कुछ टिप्स सर के याद आ रहे हैं कि पेपर 2 में, पेपर 2 क्या पेपर 1 में भी ट्राइब्स के आगे दा लगाना है, द नुएर्स, द ये सब. तो क्योंकि एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं उनका माइंडसेट मतलब ट्राइब के डेवलपमेंट पढ़ते हैं, तो यू शुड रेस्पेक्ट द ट्राइब्स आल्सो. So put the small word the Nuers and Nuers पे नहीं छोड़ना, the Nuers of साउथ सुडान या सुडान जो भी है. इस तरीके से ये वाले दा लगाना है. वो कहाँ का है वो, ऐसे बुशमैन. एंड फर्स्ट टिप ये हो गई. सेकंड इज द डायग्राम्स में एक कॉमन डाउट होता है कि पेंसिल से बनाए या पेन से बनाए. सो 2021 अटेम्प्ट में मैंने पेन से बनाया था और दिस टाइम आई यूज द पेंसिल. सो आई डोंट थिंक कि उससे कोई फर्क पड़ता है अगर आप डायग्राम अच्छा बना पा रहे हो, बट पेन से एक बार में ही सही बनाने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. जो जैसे टूल्स के डायग्राम होते हैं, टूल्स के डायग्राम आई रिमेम्बर कम से कम खाली बैठा हुआ ऐसे ही A4 साइज शीट लेके टूल्स के डायग्राम बनाता रहता था. टूल्स के डायग्राम हो गए या बोन्स वगैरह जो फोसिल्स के होते थे. सो प्रैक्टिस दोज थिंग्स. डायग्राम हो गए. और हाँ, एंड पेपर 2 में जो हमारे स्कॉलर्स है, जो इंडियन स्कॉलर्स है, उनके नाम के आगे डॉक्टर लगाना, डॉक्टर या प्रोफेसर. अगर डॉक्टर नहीं पता तो प्रोफेसर लगा दो सबके आगे. दिस डाउट आई आस्क्ड सर ऑन द कॉल कि सर वो डॉक्टर है प्रोफेसर है. सर कह रहे हैं सब में प्रोफेसर लगा दो, कोई इशू नहीं है. सो प्रोफेसर लगाना, प्रोफेसर या डॉक्टर. देन इन पेपर 2 एक इंपॉर्टेंट टिप ये भी आती है, जो हिंदी वाले कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे वर्णा और वो सब, वो हिंदी में लिख के उनको अंडरलाइन कर देना. मतलब हिंदी में ना लिख के लिखना उनको इंग्लिश में ही है, लेकिन जो सर अलग वाली बताते हैं ए डॉट वगैरह, इस तरीके से. देन पेपर 2 में एक कॉमन फॉर्मेट हमारा जो चलता है वो होता है कि केस स्टडी, ट्राइबल का जो क्वेश्चन आता है तो केस स्टडी एक अलग से दे देना कि इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन का ट्राइबल की केस स्टडी. सो वो वाला भी एक फॉर्मेट है, बट आई लाइक मोर की पॉइंट्स में देके उसमें एग्जांपल दे देना कि इस टाइप के साथ ऐसा हुआ. अलग से केस स्टडी एक ना देके 2-3 कम से कम एग्जांपल उसमें हो जाए. इस तरीके से मतलब सर must have shared different case studies on the group. So 8 से 9 केस स्टडीज ऐसे निकाल लो जो कहीं भी पुट कर सकते हैं, जो 2 से 3 क्वेश्चन में चले जाएगी. इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी यू कैन पुट इन द ग्लोबलाइजेशन. जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की स्टडी, पेपर 2 की स्टडी पेपर 1 में इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑन मार्केट इकोनॉमी,
मार्केट इकोनॉमी ऑन ट्राइब्स, देयर इज अ टॉपिक, सो उसमें भी पुट कर सकते हैं। तो ऐसे 6-7 केस स्टडीज, make a group and find those 6 to 7 case studies that you can reuse in your answers in both paper 1 and paper 2. Paper 1 में you quote the Indian tribes also, give the international tribes names and give 1 or 2 Indian tribes also if you have the case study for the Indian tribe. So for example एक इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी में एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है मार्केट का, विलेज मार्केट्स या रीजनल मार्केट्स। सो देयर वाज अ न्यूज क्लिपिंग shared by the sir on the WhatsApp group regarding a village in the Andhra Pradesh where barter using the salt and something is being done. So I wrote that case study in the paper 1 of the Indian tribe, but I wrote that case study in paper 1 also. सर अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी में जैसे बहुत सारे टॉपिक्स है सर, फॉरेंसिक हुआ, स्पोर्ट्स हुआ, डिफेंस हुआ, तो सर उसमें जैसे उसके अगर किस कोई एक डिफेंस एंथ्रोपोलॉजी पे अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो सर उस पे मतलब कैसे नोट्स बनाएंगे सर? जैसे करंट अफेयर्स तो सर ग्रुप पे शेयर कर देते हैं, बट सर उससे एक स्पेसिफिक आंसर कैसे बनाएंगे, लेट्स सपोज डिफेंसिव एंथ्रोपोलॉजी के लिए या स्पोर्ट्स एंथ्रोपोलॉजी के लिए, तो इसमें आंसर्स कैसे बनाएंगे सर? आइडिया। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। डिफेंस एंथ्रोपोलॉजी नहीं है, यूज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन डिजाइनिंग द डिफेंस इक्विपमेंट्स, डिजाइनिंग द डिफेंस इक्विपमेंट्स है। तो उसका आंसर ऐसे बनेगा, जो मैंने नोट्स में अपने बनाया हुआ था, कि पहले थोड़ा सा हिस्ट्री डाल दो कि फर्स्ट टाइम यूज ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी इन डिजाइनिंग द डिफेंस इक्विपमेंट वाज डन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, व्हेन कोई स्कॉलर है शायद हटन ने यूज करा था स्पेस क्राफ्ट वगैरह बनाने के लिए। आई मे बी रॉन्ग, कुछ ऐसा था कि पहले हिस्टोरिकल डाल दो कि फर्स्ट टाइम डिफेंस इक्विपमेंट्स में कैसे यूज हुआ, देन डिफरेंट एग्जांपल्स डालते चले जाओ कि किस तरीके से वो डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल एक पार्शियल प्रेशर सूट्स का एक एग्जांपल है, बेटर एर्गोनॉमिक्स एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं इस तरीके से। हाँ, वो नेक्स्ट स्टेप बताता हूं मैं। फर्स्ट थिंग इसकी, जो सर ने मटेरियल प्रोवाइड करा है और जो सर ने क्लास में अपने बताया है, पहले उसको पूरा थोरो करो, क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में नोट्स बना लो। नोट्स पहले जो सर क्वेश्चंस दे रहे हैं उनके बनाओ, देन कुछ पॉइंट्स जैसे छोटे कभी आए नहीं है, जैसे फिलिएशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री फिलिएशन एक टर्म है, वो कभी आई नहीं है, लेकिन क्या पता आ जाए, क्योंकि 2022 पेपर में एक टर्म आई थी जो कभी आई नहीं थी लेकिन फर्स्ट टाइम आई थी, तो वो 10 मार्क का लूज कर देते अगर नहीं पढ़ करा होता वो। तो फिलिएशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री फिलिएशन जैसे सर एक डिक्शनरी डालते हैं, डिक्शनरी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, तो उसमें से लेके थोड़ा सा नोट बना लो आधे पेज का कि फिलिएशन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फिलिएशन क्या होता है। ये तो फर्स्ट थिंग इसकी, जो सर ने पहले क्वेश्चन और आंसर करा दिए उनको कंप्लीट करो, ठीक है। परफेक्शन में मत जाओ कि फॉर द फर्स्ट टाइम नोट्स जो है बिल्कुल परफेक्ट होंगे, परफेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि लास्ट तक भी अपडेशन चलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जिस दिन एंथ्रोपोलॉजी का एग्जाम था उस दिन सर ने सुबह टोडाज की केस स्टडी डाली थी, नीलगिरीज के टोडाज है, उनकी केस स्टडी अपने ग्रुप पे सर ने डाली थी, कुछ डॉक्टर शर्मा की केस स्टडी थी। सो वो रीड करके उसी दिन एग्जाम में मैं वो लिख के आया जो सर ने अपने ग्रुप पे डाली थी। तो लास्ट तक वो अपडेशन चलती रहेगी, बट एक बेसिक यू शुड हैव द नोट्स बेसिक जिन पे वो अपडेशन करते रहो, ठीक है। तो उस बेसिक नोट्स के लिए सर का प्रोवाइडेड जो मटेरियल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग इज, मटेरियल्स के बाद जो सर अपने ग्रुप पे डालेंगे, ग्रुप पे जो भी मटेरियल डालेंगे उसको सेग्रीगेट करते रहो। इफ पॉसिबल 3 to 4 फ्रेंड्स का ग्रुप बना लो एंड यू शुड सेग्रीगेट दैट मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ द टॉपिक्स। और उसको सिर्फ कलेक्ट नहीं करना है, उसको एक बार रीड कर लो, उसमें से जो भी एंथ्रोपोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है वो साइड रखो, ठीक है। उसको फिर अपने नोट्स में ऐड कर लो, वीकली कर लो ये एक्सरसाइज या डेली, ठीक है। मैंने ये वाली एक्सरसाइज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फॉर्मल जो 3 to 3.5 months का जो भी कोर्स था इंस्टीट्यूट का, उसके बाद मैंने ये एक्सरसाइज करी थी, जो भी सर का मटेरियल था उससे वैल्यू एडिशन अपने नोट्स में करा था। फ्रॉम व्हाट्सएप ग्रुप मटेरियल।
इसके बाद भी कुछ ऐसे पार्ट्स रह जाते हैं जिनमें हमारे पास करंट का नहीं होता, कि बिल्कुल ही कुछ करंट की स्टडी या नहीं मिल पाती है, तो उसके लिए अक्षत जैन सर की बुक, एंथ्रोपोलॉजी की जो अक्षत जैन सर की बुक है, तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस के लिए मैंने पार्ट उठाए थे, एग्जांपल्स वगैरह थोड़े क्वेश्चंस के लिए अक्षत जैन सर की बुक से उठाए थे, जिसमें मेरे पास एग्जांपल्स नहीं थे या फॉर्मेट नहीं था। बट अगेन वो रिडंडेंट हो चुका है, क्योंकि वो 2-3 साल से मार्केट में है, तो फिर उसके मार्क्स अब क्यों ही देगा एग्जामिनर उससे। तो अब उसके लिए हमें एग्जांपल्स चेंज करने पड़ेंगे। तो उनके लिए क्या करता था, गूगल, वो टॉपिक लिख के गूगल कर दो, गूगल पे कुछ ना कुछ पहला दूसरा लिंक की पीडीएफ वगैरह कुछ आ जाता है, उसमें एग्जांपल्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक मीनोपोज एंड मिनार करके हमारे पास एक डेमोग्राफी में एक कॉन्सेप्ट आता है फर्टिलिटी फिकंडिटी में, तो उसकी एक करंट की केस स्टडी इंडियन मीनोपोज सोसाइटी की डॉक्टर राम आहूजा की केस स्टडी है कुछ ही साल पहले की, तो वो मैंने गूगल पे सर्च करके अलग से वो केस स्टडी अपने नोट्स में ऐड करी थी कि इंडियन वुमेन में एज कम हो रही है एज कम्पेयर टू, ऐसा कुछ है कंपेरेटिव। और लकीली इस बार के एग्जाम में भी क्वेश्चन था 10 मार्क का रिगार्डिंग द मीनोपोज। सो ये मेरी बेसिक अप्रोच थी नोट्स बनाने की। सो एक होता है कि नोट्स कैसे बनाने, नोट्स फर्स्ट तो जो पूरे डिक्टेट करते हैं सर आंसर्स, वो तो लिखने ही है। डेफिनेशंस आपको वैसे ही सेम कोट करनी है, मैरिज की जो बड़ी डेफिनेशन है वो याद करनी ही है, उसी तरीके से कोट करनी है। जब स्कॉलर दो, स्कॉलर को अंडरलाइन कर दो, अगर बुक का नाम है ब्रैकेट में बुक का नाम दे दो। ये छोटी छोटी चीज, एज पर दिस स्कॉलर, ब्रैकेट में बुक का नाम, फिर डेफिनेशन दे दो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एग्जामिनर वो डेफिनेशन भी ना पढ़े, उसने अगर स्कॉलर पढ़ लिया और ये बुक का नाम पढ़ लिया तो हो सकता है वो आगे बढ़ जाए उसको देख के, ये पॉसिबिलिटी है। तो उसको फीड करो तुम कि मुझे पता है इतना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आंसर राइटिंग पे। आंसर राइटिंग का जो फॉर्मेट होता है मेरा, इसमें कुछ है पहले डाउट कि कहाँ से प्रिपेयर करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। फर्स्ट वैद सर का मटेरियल, सेकंड वैल्यू एडिशन उन्हीं के व्हाट्सएप उससे करो, बेस्ट सोर्स है, क्योंकि सर इज ऑलरेडी एक्टिव इन मैनी ग्रुप्स ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी, जो स्कॉलर्स एंथ्रोपोलॉजी के हैं, सर गिव दैट मटेरियल ओनली। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजिकल कांग्रेस का सर ने कुछ पीडीएफ डाली थी, दैट आई आल्सो कोटेड इन दिस अटेम्प्ट। सो यूज दैट मटेरियल ओनली। अगर उसके बाद भी कुछ लगता है देन यू शुड गूगल इट एंड अक्षत जैन सर की बुक मैंने यूज करी थी कुछ क्वेश्चंस के लिए, तो बाकी मैं गूगल ही ज्यादा कर रहा था कि इस टॉपिक पे कुछ रिसेंट केस स्टडी है क्या। ये कोई डाउट इसमें, कुछ भी बेसिक से बेसिक कुछ भी डाउट हो पूछ सकते हो। How much time did it take for you to prepare an answer first time? आपने क्लास टॉपिक किया उसके बाद वो आंसर लिखना कितना टाइम? फर्स्ट टाइम लिखा, फर्स्ट टाइम फिर हमारा कुछ 4 से 5 जनों का ग्रुप था, उस पर डालते थे, फिर सर से चेक कराते थे आपको लिखने में कितना टाइम? आंसर लिखने में। हाँ, तो पर आंसर मैं कभी ऐसे टाइम चेक नहीं करता था। मेरी पर्सनल अप्रोच थी कि पूरा 1.5 आवर बैठो, कितने आंसर तुम लिख पा रहे हो। एंड फर्स्ट टाइम मुझे ध्यान है 1.5 आवर में ओनली 5 to 6 आंसर्स आई कैन मैनेज। 1.5 आवर में 10 मार्कर 5 to 6, क्योंकि अच्छी तरीके से अंडरलाइन करना शुरू शुरू में वो होता है ना कि अंडरलाइन भी करना है, बॉक्सिंग भी करनी है और वो सब इस तरीके से, लेकिन विद टाइम वो अपने आप रिड्यूस होते चले जाएगा। This is when you were testing yourself or when you were preparing the answer to get it checked by sir? चेक्ड बाय सर वाले सर ने जिस दिन दिया जी। उसी दिन शाम में कंप्लीट कर लिया, उसी दिन हमने आंसर्स उसी दिन शाम में फर्स्ट ड्राफ्ट कंप्लीट कर लिया और फिर सर को व्हाट्सएप कर दिया, क्योंकि हमारा ऑनलाइन ग्रुप था तो हम फिजिकली तो ऑनलाइन बैच था तो नहीं दिखा पाते थे, तो इस वजह से सर को उसी दिन व्हाट्सएप कर दिया और 1-2 दिन में सर अपना आप ही वीडियो कॉल करते थे। दैट इज अ गुड थिंग कि सर व्हाट्सएप पे जनरली व्हाट्सएप पे मार्क करके नहीं करते थे, वो वीडियो कॉल पे अलग से कॉल करके चेक करा देते थे आंसर की, ये सही है ये गलत है, तो ऐसा करते थे हम लोग फर्स्ट टाइम के लिए। For online students, how to manage time for anthropology and GS? That I will come when we will switch to the GS part after the anthropology. Time management thing I will discuss in detail.
आंसर राइटिंग इन एंथ्रोपोलॉजी. सो की फॉर्मेट, स्टार्ट इंट्रो स्टार्ट करते हुए गिव स्कॉलर नेम, किसी ना किसी स्कॉलर का नेम देना ही देना है. कोई ना कोई स्कॉलर होगा ही होगा जरूर उस वाले. इफ यू डोंट हैव आस्क द सर, क्योंकि सर के पास बहुत मटेरियल है, सर कोई ना कोई स्कॉलर या डेफिनेशन बता ही देंगे. ठीक है, इंट्रो में कोई स्कॉलर का नेम, डेफिनेशनल उससे शुरू करना. देन मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स के फॉर्मेट इज फिक्स्ड, लाइक फोसिल्स एंड प्री हिस्ट्री. मोस्ट ऑफ आंसर का फॉर्मेट फिक्स्ड है. बाकी जो क्वेश्चन में पूछा है उस तरीके से उसको देना. एंथ्रो में वन थिंग इज गुड कि 60 to 70% पार्ट ऑफ द आंसर आपको आता ही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कवर हो चुका है इंस्टीट्यूट में या कहीं भी कवर हो चुका है. वो 60 to 70% पार्ट आता ही है, तो उसको देना शुरू करो. वो सारा पार्ट देके देन कंक्लूजन. कंक्लूजन में अगेन सम रिसेंट स्टडी, या अगर डिबेट है तो सम फ्यूचरिस्टिक सजेशन. डिबेट में कभी बीच में नहीं छोड़ना होता. फ्यूचरिस्टिक सजेशन काइंड ऑफ. सो इस तरीके से हर एक आंसर में मेरे 2 से 3 स्कॉलर तो फिक्स ही होते थे. 2 से 3 स्कॉलर हर एक आंसर में फिक्स. और एक यू कैन से इट एज अ बिटर ट्रूथ, एंथ्रो में मगअप करना ही पड़ेगा. जब तक आपके माइंड में वो आंसर से एकदम फिक्स नहीं होंगे ना बिल्कुल अच्छी तरीके से, तब तक वहां पे आप प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे. अगर वहां पे प्रोड्यूस कर भी लिए कुछ आंसर्स तो पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा. पेपर कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. उस 3 आवर में कंप्लीट पेपर हमें करना ही है. तो कुछ आंसर्स हमें मगअप करने ही पड़ेंगे कि हम वहां पे नहीं सोच सकते कि हमें क्या लिखना है इस आंसर में. तो हाँ, तो नहीं है तो उसको एंड कर दो. जैसे फिर हाँ थ्योरीज है, थ्योरीज में कंक्लूजन का स्कोप नहीं. थ्योरीज में कंक्लूजन में सर ने एक पैट लाइन दी है ना कि दिस थ्योरी इज द वो कि फ्यूचर थ्योरीज के लिए ग्राउंड डेवलप किया इस थ्योरी ने, ऐसे कुछ एक लाइन है कंक्लूजन की. फंक्शनलिज्म में वो लिमिटेशंस पे शायद खत्म हो गए, फिर डिस्पाइट द लिमिटेशंस द थ्योरी ऑफ द फंक्शनलिज्म इज स्टिल इंपॉर्टेंट, ऐसे कुछ लाइंस है. मेरिट्स नहीं है उसके, मतलब कुछ फंक्शनलिज्म इज स्टिल इंपॉर्टेंट ऐसे कुछ करके है. फंक्शनलिज्म बाय द मालिनोव्स्की, या फंक्शनलिज्म में यू कैन गिव इफ यू आर द कोई और एग्जांपल है कि अगर हमें कहीं और इंस्टीट्यूट में फंक्शनलिज्म देखने को भी मिलता है एप्लीकेशन टाइप का, तो उससे कंक्लूड कर सकते हो. ये आंसर राइटिंग फॉर्मेट था बेसिकली. मेरे नोट्स भी इसी फॉर्मेट में है. इंट्रो टेलीग्राम में आई विल शेयर. अभी जैसे मुझे टाइम मिलेगा करूंगा, बिकॉज आई यस्टरडे ओनली आई कम टू दिल्ली. सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ आंसर राइटिंग. एंड देन सेकेंड थिंग इज जो भी वैल्यू एडिशन करना है इसी बेसिक वाले में होगा आपका वैल्यू एडिशन. इसी में आप वैल्यू एडिशन करते रहो. वैल्यू एडिशन मटेरियल मैंने बता दिया. एंड थर्ड पार्ट इज द करना है. किसी भी तरीके से सबका अपना अपना स्ट्रेटेजी होता है याद करने का. आंसर्स को याद करना ही करना है. मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी आंसर्स को याद करने की? पहले तो अपने खुद के हाथों से नोट्स बनाए खुद की. उसके बाद नोट्स बनाने के बाद 15 से 20 A4 साइज शीट्स ली, उनको स्टेपल करा, उन पे लिखा उनको आंसर्स को, उन पे लिखा, बार बार लिखना इस तरीके से. तो वो अपने आप दिमाग में याद हो गए कि जैसे ही मेरे दिमाग में होमो इरेक्टस आएगा तो मैं ऐसे ही लिखना है मेरे, उस तरीके से चलना है. तो लिखना ही प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस से ही याद होंगे, और कोई तरीका नहीं है आंसर को याद करने का. ये आंसर राइटिंग हो गया. एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग द एंथ्रो? How did you cover archaeology? Because archaeology को इसको पेपर में थोड़ा बढ़ता जा रहा है. आपने देखा होगा, और आर्कियोलॉजी इज वेरी स्कोरिंग इफ यू नो द आंसर्स. तो हाउ डिड यू ब्रॉडन योर स्कोप? क्योंकि जो मटेरियल में उससे अलग से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं आर्कियोलॉजी में. इट्स नॉट वेरी अनकॉमन. जैसे नटूफियन कल्चर वाला ही था, आपने बोला एम्बर अवॉइड करो, एम्बर में वो आंसर एज इट इज दे रखा है. तो इस हिसाब से आगे अगर आ गया तो फिर कैसे क्या स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए? अब हाँ, नटोफियन कल्चर है, ऐसा है. एक तो क्वेश्चन और ऐसे आते हैं कि जो नहीं कवर कर पाएंगे, लेकिन हमें उन क्वेश्चंस के पीछे भागना ही नहीं है, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 80 to 90% परफेक्टली. उसको सही से लिखना है. नटोफियन कल्चर अगर
नटूफियन कल्चर का अगर अटेम्प्ट करना होता, सर ने अपने किसी आंसर में एग्जांपल्स में कहीं पे दिया है नटूफियन कल्चर, जहां तक मुझे पता है, मतलब पूरा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ नटूफियन कल्चर, लेकिन किसी कल्चर का पार्ट है, नियोलिथिक या मिजोलिथिक के ट्रांजिशन का पार्ट में कहीं पे लिखवाया है नटूफियन कल्चर। सो मैं नटूफियन कल्चर लिख के उसके अंदर डायग्राम्स वही बना देता, मिजोलिथिक और नियोलिथिक वाले ही डायग्राम्स बना देता। सो ये बेसिक जो ट्रिक्स है ये आंसर राइटिंग से ही आएगी, कि नहीं आता लेकिन कहीं पे बस हल्का सा सुना है कि इस वाले टॉपिक में मैंने उस पार्ट को सुना हुआ है, तो कैसे उसको लिखना है, ये चीज। नटूफियन कल्चर का अक्षत जैन सर ने भी अपनी बुक में कहीं पे एग्जांपल के लिए नटूफियन कल्चर लिखा हुआ है उस तरीके से, तो अगर अटेम्प्ट करना होता तो इसको ऐसे करते नटूफियन कल्चर, लेकिन ऐसे। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सर। सर जैसे कि आप अक्षत सर की बुक का बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो सर ऐसा है कि वेद सर के जो मैक्सिमम नोट्स हैं वो अक्षत सर ने यूज किया है, यूटिलाइज किया है। तो सर अब जो भी आंसर्स हम लिख रहे हैं तो वो ऑलमोस्ट एक एवरेज आंसर जैसा ही हो रहा है, तो हम ऐसा तो क्या वैल्यू एडिशन करें अदर देन वेद सर इज गिविंग कि हम 300 प्लस स्कोर करें, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो वो 250 से 270 के बीच ही रह रहा है। तो ऐसा अगर कोई टिप्स हो तो। मेरा तो पर्सनल ओपिनियन जो है उस हिसाब से वैल्यू एडिशन इन टर्म्स ऑफ द स्कॉलर्स डेफिनेशन और डायग्राम वही की होता है 300 प्लस स्कोर का। और वैल्यू एडिशन जितना करंट तक करते चले जाओगे, लाइक 2024 का एग्जाम दे रहे हो, तो अगर तुमने 2024 की ही कोई स्टडी डाल दी तो वो अलग ही हाईलाइट होगी एज कंपेयर टू द कोई 2016 की या 2017 की स्टडी डाल रहा है। तो उस तरीके से वैल्यू एडिशन। दो डिलेमा होती है सर कि एक पर्टिकुलर केस स्टडी बहुत ज्यादा हाईलाइटेड होती है, इंपॉर्टेंट होती है। जैसे एक केस स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इन टर्म्स ऑफ कि उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहा है, और एक लेटेस्ट होती है, तो उन दोनों में से कौन सी डालेंगे सर? अगर लेटेस्ट मैं लेटेस्ट वाली डालता हूँ। ओके। फॉर एग्जाम्पल नियामगिरी केस स्टडी है, वो काफी फेमस है और बहुत लोग उसको कोट करते ही करते हैं नियामगिरी को, बट वो वेदांता वाला। हाँ, वेदांता केस, नियामगिरी केस स्टडी। बट अगर तुम्हारे पास लेटेस्ट है 2021 की, 2022 की, 2023 की, उस केस स्टडी को डालो। कहीं न्यूज़पेपर में क्लिपिंग आ गई, एक केस स्टडी तो मैं ऐसे ही लिख के आया था कि न्यूज़पेपर की क्लिपिंग थी, ब्रैकेट में द टाइम्स ऑफ इंडिया डेट के साथ, फिर उस केस स्टडी को लिख दिया था पेपर 2 में। किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा था मैंने, टाइम्स ऑफ इंडिया या इंडियन एक्सप्रेस में डेट के साथ। सो इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आंसर्स का डिफरेंट पार्ट दे रहे हो ना, इंट्रो कंक्लूजन छोड़ के बाकी सारी जगह हेडिंग डाल दी। हेडिंग फिजिकल फीचर्स, कल्चरल फीचर्स, हेडिंग डाल के उसको अंडरलाइन करो, उसको बॉक्सिंग करो, और स्कॉलर दे रहे हो तो उनकी बुक्स साथ में दे दो। अगर स्पेसिफिकली अगर डेट और टाइम याद है, फॉर एग्जांपल फोसिल्स में अलग अलग ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जो फोसिल्स है उनके टाइम याद है, टाइमलाइन, तो वो भी लिख दो। बेसिकली ये जो कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स को हाईलाइट करना इज मोस्ट इंपोर्टेंट। ग्लोबलाइजेशन ऑन ट्राइबल, राइट? तो इसका आंसर हमारे पास है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन पे आया था कि इम्पैक्ट ऑन वुमेन इन स्पेसिफिक। तो अगर हमारे पास एक जनरल आंसर हो तो उससे स्पेसिफिक आंसर कैसे? उस पे अगर अटेम्प्ट करना रहेगा तो उसमें क्या करेंगे, जो इम्पैक्ट है एज द जनरल इंडियन सोसाइटी पार्ट वुमेन में, उसके और ज्यादा हार्श इम्पैक्ट ही होंगे कहीं ना कहीं। अब उसके लिए क्या है कि केस स्टडी कुछ वुमेन ओरिएंटेड होनी चाहिए। अगर नहीं है केस स्टडी वुमेन ओरिएंटेड तो मार्क्स नहीं मिलेंगे उसमें। अगर जेनेरिक सिर्फ इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन वुमेन लिख दिया तो बेटर है कि उसको अवॉइड करो, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन को अवॉइड करो इफ यू डोंट हैव द वुमेन स्पेसिफिक केस स्टडी। कुछ वुमेन ट्राइब्स की ही केस स्टडी कहीं पे है, लेकिन अगेन एक दो क्वेश्चन को देखकर उस क्वेश्चन के पीछे भागने का कोई सेंस नहीं है, मतलब क्योंकि ऑलरेडी जीएस का सिलेबस इतना ज्यादा है, तो सिर्फ हम ऑप्शनल पे ही वैल्यू एडिशन करते नहीं रह सकते। और एक दो क्वेश्चन जो ट्रेंड के क्वेश्चंस नहीं है, मेन है हमारा, हमें समझना पड़ेगा एंथ्रो का जो पेपर है दैट इज 70 to 80% जो हमारे पास प्रिपेयर है उसी में से है। हम उस 20% के पीछे भाग के टाइम खराब ना करें तो बेटर है। उस 70 to 80% को बेटर करते रहे, दैट इज गुड। ये combination of तो wider options are available.
is there any specific strategy to score maximum provided combination of questions are available? Hmm. And second question, sir, how to deal with any questions that is incompulsory and one is completely or partially not knowing the questions? And the third question, sir, areas of improvement that you have focused from your last mains to your first mains. First question is related to compulsory part है and first is related to Sir, first question is combinations of combinations. Combinations क्या होना चाहिए आंसर राइटिंग का? So combination के लिए first 5 minutes जब पेपर आ जाए 5 minutes आराम से क्वेश्चन पेपर को क्वेश्चन हर एक पढ़ लो. फर्स्ट मैं देखता था 20 मार्कर मुझे किसके सबसे सही आते हैं. 20 मार्कर से ही शुरू होता है. जिसके 20 मार्कर मुझे परफेक्टली आता है वो क्वेश्चंस मैं करता ही करता था. जिसका 20 और कम से कम एक 15 अच्छी तरीके से आता है वो क्वेश्चन अपना चूज कर लो. सेकंड, जैसा सर कहते हैं कि फिजिकल, एंथ्रोपोलॉजी, फॉसिल्स और प्री हिस्ट्री इनके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करनी है. अगर कोई ऐसा क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है जिसमें 2 क्वेश्चंस इन 3 पार्ट में से है इन पेपर 1 तो अटेम्प्ट करूंगा ही करूंगा उसको. इस तरीके से मैं कॉम्बिनेशंस अपने फाइंड करता था पेपर के. स्टार्ट इन द सेंस जैसे आपने बोला कि फॉसिल पेपर वन अगर फॉसिल और ये सारे तो आप पहले वो देखते हैं फॉसिल्स 20 मार्कर में अगर कोई आता है 20 मार्कर पहले 2015 पहले जो टाइम का डिवीजन का स्ट्रेटेजी था मेरा 1.5 आवर जो रखता था वो 50-50 मार्कर वाले 3 क्वेश्चंस के लिए एंड देन 1.5 आवर 10 मार्कर्स के लिए. 10 मार्कर जो कंपलसरी है 1.5 आवर रखोगे तो वो तभी 135 या 140 में कंप्लीट होंगे वो जो 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे 50-50 वाले. देन अपने 10 मार्कर्स को अटेम्प्ट करो. 10 मार्कर्स को आराम से अटेम्प्ट करो क्योंकि वो कंपलसरी 10 मार्कर्स. पेपर 1 पेपर 2 दोनों की सेम स्ट्रेटेजी थी. जैसे पेपर 2 है, पेपर 2 में क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर एसटी एससी वाले. सो दैट इज वो क्वेश्चन है कि उसमें कुछ कोई चेंज ही नहीं कर सकता. वो तो बिल्कुल एकदम रटा हुआ पार्ट होता है वो. तो वो अटेम्प्ट करना ही है किसी तरीके से आर्टिकल वाइज देके. और उसमें भी आर्टिकल्स को मैंने डिवाइड कर दिया था कि एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए कौन से है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए कौन से आर्टिकल्स है. ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने योजना मैगजीन में किसी में कहीं पे एक आर्टिकल में था. इस तरीके से उनको सेग्रीगेट किया हुआ था आर्टिकल्स को. तो उस तरीके से मैंने नोट्स में लिखा था. बाकी आई विल शेयर माई नोट्स ऑन द टेलीग्राम चैनल. सर एनी अदर डाउट रिगार्डिंग द एंथ्रो? सर क्या आवाज आ रही है मेरी? यस सर मैं ये पूछ रहा हूँ इस बार जो मेंस का पेपर था एंथ्रोपोलॉजी का उसमें ना कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि 2 क्वेश्चन आते एक क्वेश्चन नहीं आता. जैसे अर्जुन अपादुराई वाला क्वेश्चन या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस या फिर डिबेट बिटवीन मैलिनोस्की या और मीड की जो डिबेट थी कंट्रोवर्सी. सर इन क्वेश्चन को आपने कैसे हैंडल किया था सर? अर्जुन अप्पादुराई वाला क्वेश्चन का सर ने लकीली 2 पेज का कुछ मटेरियल अपने ग्रुप पे डाला था. अर्जुन अप्पादुराई सर ने ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन दी थी और 5 एस्केप्स में ग्लोबलाइजेशन को समझाया था. तो अगेन जो सर मटेरियल व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल रहे हैं वही हेल्पफुल है. अर्जुन अप्पादुराई ऐसे ही मैलिनोस्की एंड मार्गरेट मीड का एक क्वेश्चन था. उनका अप्रोच में कुछ डिफरेंस का क्वेश्चन था. सो मैलिनोस्की एंड मार्गरेट मीड वाले भी थ्योरीज मैंने पढ़ी हुई है. उपाध्याय एंड पांडे से थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन उनका पड़ा हुआ है, उसको मिक्स कर दिया था. ये वाला क्वेश्चन मैंने इस बार अटेम्प्ट किया था और सेम अपनी अप्रोच से ही चला मैं कि इंट्रोडक्शन की बी. हाँ, सेकंड एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे अभी याद आया. जब स्कॉलर का नाम दो, इफ यू नो द कंप्लीट नेम, बी मैलिनोस्की की बजाय नाम लिख दो ब्राउनिस्लो कैस्पर मैलिनोस्की, इंग्लिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट या बेल्जियम से थे और फिर बाद में जो भी थे. इस तरीके से ले लो. जैसे E.B. टाइलर लिख रहे हो तो एडवर्ड बर्नेट टाइलर जब स्टार्ट कर रहे हो इंट्रो में कम से कम पूरा दो उसको. एडवर्ड बर्नेट टाइलर ये वाला एंथ्रोपोलॉजिस्ट, नॉट अमेरिकन, ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट गेव दिस कॉन्सेप्ट. सो इस तरीके से इस बार मैंने अटेम्प्ट किया था बी मैलिनोस्की और मार्गरेट मीड का कि बी मैलिनोस्की दिस एंथ्रोपोलॉजी बिलोंग टू दिस स्कूल ऑफ थॉट. ही डन हिज फील्ड वर्क अमंग द ट्रोबियट आइलैंडर्स एंड ही गेव दिस काइंड ऑफ थिंग. सो अपना जो मटेरियल है उसी को यूज करना है. बस जैसे उसने क्वेश्चन पूछा है ना तो उसके तरीके से उसको ट्विक कर दो rather than फंक्शनलिज्म थ्योरी देके सीधे बी मैलिनोस्की से उसको शुरू कर देना है. और वो आएगा, थोड़ा सा थ्योरीज को थोड़ा सा इनग्रेन करना ही पड़ेगा.
थ्योरीज को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा कि वो थ्योरी कहना क्या चाहती है। फॉर एग्जाम्पल लेवी स्ट्रॉस का स्ट्रक्चरलिज्म है, वो दैट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट एक बार अगर समझ जाओगे तो वो समझ आ जाता है कि वो कहता है कि हमारे मेंटल उसमें कल्चर है और कुछ मेंटल मॉडल्स होते हैं, उसके बेसिस पे होता है। सो वो रीड करके आ जाएगा, एंड फर्स्ट रीडिंग में डेफिनेटली नहीं आएगा, तो 1 से 2 रीडिंग तो लगेगी, दैट इज इम्पोर्टेंट। ट्रूली स्पीकिंग मैंने वैद सर के जो 3 से 4 टेस्ट होते हैं पेपर से पहले वही लिखे थे, और उसमें भी मैं शायद कोई भी टेस्ट पूरा कर पाया था। प्रीलिम से पहले सर एक टेस्ट सीरीज कराते हैं, वो लिखे थे, और शायद ही कोई टेस्ट मैं पूरा कर पाया था। मैंने जो पर्सनली फॉलो करी थी स्ट्रेटेजी, वो थी घर पे आंसर राइटिंग करने का। जो टॉपिक मेरा पूरा हो गया उसकी आंसर राइटिंग करता था डेली, मतलब डेली 3 आवर्स की आंसर राइटिंग एंथ्रोपोलॉजी की बिटवीन प्रीलिम्स टू मेंस, एक कंसिस्टेंसी बना ली थी। 3 आवर्स की आंसर राइटिंग करनी ही करनी है। A4 साइज शीट का बंडल लिया, उनको स्टेपल किया, इस पे लिखना ही लिखना है कि इस टॉपिक पे मेरा ये आंसर है, मैं उसको किस तरीके से रिप्रोड्यूस कर पा रहा हूँ। सेम सिलेबस का टॉपिक उठाया, सोशल इंस्टीट्यूशंस आज उठाए, सोशल इंस्टीट्यूशंस का सारा जो भी है वो लिखना, क्योंकि हमारे नोट्स ही क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है। उन नोट्स को एकदम याद कर लो और उन नोट्स को बार बार लिख के देख लो। अलग से मैंने कोई और टेस्ट सीरीज नहीं ली थी। ये शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे, अपने नोट्स में कीवर्ड्स को मार्क करा हुआ था ताकि जल्दी रिवाइज हो जाए। टाइम, ये वाला डेटा उस कितना टाइम लगा था नोट्स में? यार नोट्स में तो लास्ट तक चलते रहे थे लगभग। मेन जो है वैल्यू एडिशन लास्ट तक चलता रहेगा। बेसिक नोट्स जनवरी फरवरी अराउंड कंप्लीट हो गए थे कि एक बेसिक हर चीज का आ जाए, ये हर एक पार्ट का कुछ कुछ बेसिक आ जाए। बाकी जो केस स्टडीज और वो वैल्यू एडिशन है वो लास्ट तक चलता रहेगा। और समटाइम्स क्या होगा, अगर इंटरेस्ट लेने लगोगे ना एंथ्रो में, तो अपने आप ही वो याद रहने लग जाएगा ट्राइब्स का धीरे धीरे। जैसे टोडास है, टोडास को थोड़ा सा पढ़ लोगे तो वो हम टोटेमिज्म में भी डाल सकते हैं कि बफेलो उनका टोटेम है। हम कुछ फीमेल डिस्क्रिमिनेशन में भी डाल सकते हैं, मतलब GS 1 में हम फीमेल डिस्क्रिमिनेशन में डाल सकते हैं कि वहां पे वुमेन आर नॉट अलाउड इन देयर, जहाँ पे कैटल हियरिंग वो होता है। तो ऐसे कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस में तो थोड़ा सा इंटरेस्ट सब्जेक्ट में डेवलप करना ही होगा, ताकि हम पता कर सके कि कहाँ पे क्या एग्जाम्पल डालना है। कभी कभी क्या होता है कि पेपर 1 की पेपर 2 में तो नहीं मैं यूज करता था, लेकिन पेपर 2 के जो ट्राइबल एग्जाम्पल्स वगैरह होते थे वो पेपर 1 में काफी यूज करे थे। पेपर 1 में उनको पर्टिकुलरली थ्योरीज वाले पार्ट में इंट्रोड्यूस करा दो। जैसे रेस का कॉन्सेप्ट है, रेस के कॉन्सेप्ट का पेपर 2 में भी यूज है। तो एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है कौन से टॉपिक में यूज है, लेकिन रेस की डेफिनेशन मैं पेपर 2 में भी कहीं पे दी थी। हाँ, रेशियल क्लासिफिकेशन, तो वो डेफिनेशन मैंने पेपर 1 की उठा ली। रेशियल क्लासिफिकेशन को मैंने ऐसे डायरेक्ट नहीं शुरू करा कि एज पर पीपल ऑफ इंडिया जो रिपोर्ट जिस भी तरीके से है, पहले रेस की डेफिनेशन दे दी कि रेस एज पर दिस स्कॉलर ब्रैकेट में वो, तो ताकि पेपर 1 और पेपर 2 में लिंकेज भी डेवलप हो जाए। पेपर 2 इज नॉट ओनली अबाउट सिर्फ इंडिया का नहीं है पेपर 2 इज ऑल्सो ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। सो उसमें भी हम यूज कर सकते हैं इंटरनेशनल स्कॉलर्स। एनी अदर डाउट रिगार्डिंग द एंथ्रोपोलॉजी? एंथ्रोपोलॉजी में पूरा सब मिला के पेपर 1 पेपर 2 सब कुछ आपने कुछ प्रायोरिटी ऑर्डर बनाया होगा, और कोई बनाता कि मैं ये पहले करूंगा और ये बाद में करूंगा, तो व्हाट वाज दैट? ठीक है, मैं पेपर 1 में मोर कंफर्टेबल था एज कंपेयर टू पेपर 2। ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी रहती थी पेपर 1। पेपर 1 का कोशिश था कि प्रीलिम से पहले एकदम 100% कंप्लीट हो जाए, क्योंकि उसमें कुछ भी एडिशन करने का स्कोप बहुत कम है। पेपर 2 मोर डायनेमिक है, उसमें एडिशन होता रहेगा। तो पेपर 1 तो बिल्कुल कंप्लीट करके रख देना है प्रीलिम से पहले। ठीक है, उसके बाद पेपर 1 में भी प्रायोरिटी इज द फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। फिजिकल बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी बहुत छोटा भी है, मतलब अच्छा है, और थोड़ा याद करने का ईजी है डायग्राम से, तो वो जल्दी हो जाता है। 3 से 4 दिन में वो कंप्लीट हो जाता है फिजिकल बायोलॉजिकल। फिजिकल बायोलॉजिकल के बाद एक थोड़ी मिस्टेक जो मेरी रिवीजन में रही थी पर्सनली, वो थी मैं फॉसिल्स और प्री हिस्ट्री से बचता था। फॉसिल और प्री हिस्ट्री की थोड़ा याद करने का कॉम्प्लेक्स टर्म्स है, बट फिर समझ आया फॉसिल और प्री हिस्ट्री ही है जो मार्क्स दिलाएंगे। इन 2021 अटेम्प्ट फॉसिल और प्री हिस्ट्री मेरी
डर था कि ये कैसे कंप्लीट करूंगा मैं फॉसिल प्री हिस्ट्री के क्वेश्चन, इसमें डायग्राम से और वो सब है, बट मैंने फिर भी वही अटेम्प्ट करे और कहीं ना कहीं मार्क्स उसमें ज्यादा देते हैं फॉसिल और प्री हिस्ट्री में। और इस बार फिर मैंने फॉसिल प्री हिस्ट्री पे काफी फोकस करा, उनको अच्छी तरीके से याद कर लिया था। सो बायोलॉजिकल, फॉसिल और प्री हिस्ट्री, देन सोशो कल्चर में थ्योरी पार्ट, थ्योरी के बाद इंस्टीट्यूशंस एंड पेपर 1 आई थिंक कंप्लीट। पेपर टू में सबसे पहले जो होता था 3 और 5 को क्लब किया था। 3 इज द कास्ट एंड ऑल दिस एंड 5 इज संस्कृताइजेशन एंड ऑल। 3 एंड 5 टॉपिक को एक साथ क्लब करना, पूरे ट्राइबल को एक साथ क्लब कर देना, पूरे ट्राइबल को 1 वीक में करना, क्योंकि जो ट्राइबल का वो सिलेबस इतना है लेकिन वो है कुछ 20-25 क्वेश्चन ही, उनको बार बार यूज करना है हमें, उन्हीं 20-25 क्वेश्चंस की टॉपिक्स को यूज करना है। और ट्राइबल में हमें जेनेरिक ही लिखना है, बस केस स्टडी ही हमें हाईलाइट करेगी कि ये चीज इस ट्राइब के साथ हो रही है, इस तरीके से। फिर ट्राइबल हो गया, 3-5 हो गया, देन उसके प्री हिस्ट्री और फॉसिल्स आ गए, रामापिथेकस, शिवापिथेकस और वो सब, इस तरीके से प्रायोरिटी रहती थी। तो मतलब प्री से मेंस का जो टाइम था बीच में 1 मंथ के अंदर दोनों पेपर एक बार रिवाइज हो जाए और फिर सिर्फ राइटिंग एंथ्रो की, बाकी टाइम फिर जीएस, इस तरीके से प्रायोरिटाइज किया। So anything that you did जो आपको अब लगता है कि शायद ये नहीं करना चाहिए था, there was a better way, कुछ भी anything that you can tell us? हाँ, दैट इज गो फॉर द परफेक्शन ऑफ द नोट्स। मतलब कई बार ऐसा था कि परफेक्ट आंसर लिखने के चक्कर में 3-3, 4-4 बार सेम ही चीज बार बार लिख के जा रहा हूँ, वो कोई मतलब नहीं होता। परफेक्शन में मत जाओ नोट्स के, जस्ट एक बेसिक नोट्स हो, वो धीरे टाइम के साथ अगर पढ़ने का वो रहेगा ना कि एंथ्रोपोलॉजी में इंटरेस्ट रहेगा, जो सर मटेरियल डाल रहे हैं, जो न्यूज़पेपर में ट्राइब का कुछ भी न्यूज आ रहा है, अगर इंटरेस्ट रहेगा तो अपना आप ऐड कर लोगे अपने नोट्स में उसको। तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि एक इंटरेस्ट डेवलप कर लो बेसिक चीजों में। जैसे कि हमारा एक कॉन्सेप्ट है सैक्रेड नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स का, ठीक है, प्रोफेसर एलपी विद्यार्थी ने दिया है। तो उसमें क्या है कि हमारे पास केस स्टडी प्रोफेसर एलपी विद्यार्थी वाली तो है ही, ठीक है, जो उन्होंने द मालेर्स वगैरह में स्टडी करा है। एक उसके न्यूज क्लिपिंग थी कि मणिपुर में माउंट कोब्रू को लेके कुकी ट्राइब्स सम कुछ कर रहे हैं कुछ, सो वो केस स्टडी मैंने अलग से प्रिपेयर करी थी फिर। तो वो कहाँ से मिली? न्यूज़पेपर से, इस तरीके से। सो वो न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में क्लिक हो गया कि यहाँ पे नेचर मैन स्पिरिट लग रहा है, कि कुकी ट्राइब्स जो है वो उनके लाइफ वो माउंट कोब्रू के अराउंड घूमती है, इस तरीके से। सो ये सब चीजें ऐड करनी पड़ेगी अपने नोट्स में, उन नोट्स अपने क्वेश्चन को हाईलाइट करने के लिए बाकी दूसरों के क्वेश्चन से, क्योंकि जो भी मार्केट में मटेरियल है वो सब फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास एक पॉजिटिव पॉइंट है कि सबसे पहले तो वैद सर वाला मटेरियल है जो वो व्हाट्सएप ग्रुप पे एक्सक्लूसिवली हम लोगों के लिए डाल रहे हैं, जो इंस्टीट्यूट सर को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए डाल रहे हैं एक्सक्लूसिवली। पहले तो उस मटेरियल में से निकाल लो जितना निकाल सकते और बाकी गूगल कर लो। ये मेन थिंग है कि कैसे अपने आंसर को हाईलाइट करना है, और बाकी ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, दा लगाना, प्रोफेसर, डॉक्टर, अंडरलाइन और इस तरीके से। Sir, am I audible? यस। So then, other than Upadhyay's book for paper 1, you didn't refer to any other market book as such personally? सॉरी, कैन यू रिपीट? Sir, I'm asking you कि other than Upadhyay's book for theories, did you personally refer to any other market books like they are available in the market? No, I read that Alabama site also and Upadhyay and Pandey, one reading. Sir, Yes, sir, congratulations first of all. thank you. Sir, there are some short notes question of 10 marks that are asked like from 2 years since, like example glottochronology in the last year question. So we don't know anything about it and we can't skip it. So like should we write anything or like don't waste our time on it or just skip it altogether? First time you should skip such questions, and in glottochronology मुझे भी नहीं पता था फ्रैंकली कि क्या होता है, कभी नहीं सुना था। मैंने सिर्फ नॉर्मल दे दिया कि क्रोनोलॉजिकल मेथड्स होते हैं, डायग्राम बना दिया, एब्सोल्यूट मेथड्स, रिलेटिव मेथड्स, इतना लिख के आया था मैं। सो उन क्वेश्चंस के पीछे मत भागो क्योंकि वो हम नहीं कर सकते। ऐसे कुछ 2021 अटेम्प्ट में कुछ थर्मल कुछ डेटिंग वाला मेथड आया था, हाँ कुछ ऐसा कुछ आया था, तो वो भी इन जेनेरिक मैंने सिर्फ कीवर्ड से समझा कि थर्मल ल्यूमिनेसेंस मतलब यू शुड हीट एंड देन सम काइंड ऑफ कलर रेज निकलती होगी। तो पहले मैं अपना वो नॉर्मल क्रोनोलॉजी वाले देखे
कि डेटिंग मेथड्स की डेफिनेशन आर यूज्ड टू डेट द स्पेसिमेंस, टाइप्स एब्सोल्यूट और रिलेटिव। आधा पेज मेरा उसमें भर गया 10 मार्कर का। देन उस पे थर्मल ल्यूमिनेसेंस का थोड़ा थोड़ा लिख दिया था कि हीट करने से रेस निकलती है उससे। सो एक मिनट। जीरो से तो बेटर है ना। गोटो क्रोनोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं, पढ़ो, अपने आप आंसर मिल जाएगा। हाँ सर, वो तरीके से आंसर बना बनाया है उसमें। वही सर हिंदी का। हिंदी का देख लेते तो आंसर उसी में था। तो इस तरीके से कीवर्ड से अगर समझ आ रहा है तो लिख दो, नहीं तो थोड़ा बहुत जो भी आता है एक आधा नंबर तो देगा ही वो, एक आधे नंबर से ऊपर नीचे हो जाता है कुछ भी। सो एक एक नंबर के लिए मतलब एक फाइट करनी है किसी भी तरीके से, एक एक नंबर के लिए हमें फाइट करनी है कि मैं कहाँ किस तरीके से अपना एक नंबर बढ़ा सकता हूँ। क्योंकि देयर इज नो बेनिफिट कि हम साइकिल में ही लगे रहे कि प्री क्लियर कर दिया ठीक है, मेंस क्लियर कर दिया ठीक है, लेकिन इंटरव्यू रह जा रहा है। साइकिल में लगे रहने का बेनिफिट कुछ नहीं है। और प्रीलिम्स और इंटरव्यू थोड़े लक बेस्ड होते हैं, लेकिन मेंस है कि पूरा हार्ड वर्क है। मेंस इज सोनली हार्ड वर्क। और ये पर्सनली मैंने फील भी किया है अपने 2021 अटेम्प्ट और 2023 अटेम्प्ट में। इसके बाद आते हैं उस पे जीएस पे कैसे करना है। अगर एंथ्रोपोलॉजी में कुछ और डाउट्स हो तो प्लीज। इंग्लिश में लिखने का। यस सर। सर स्टार्टिंग में जैसे हम आंसर लिखते हैं, मैंने लिखा तो कई बार सर का बुक देख के वही लैंग्वेज चेप दिया वैसे ही, और फिर मुझे लगता था कि ये मेरा तो है ही नहीं, अब मैं इसे रटूं, मतलब वो थोरली समझ में नहीं आता था। तो वो कैसे आपने डील किया? ये प्रॉब्लम आई भी थी या नहीं आपके साथ? हाँ, वो ये है कि सेम किसी भी बुक से कॉपी पेस्ट मत करो। सिर्फ कॉपी पेस्ट वही चीज करो जो डेफिनेशनल है, जो कोर्स और उसमें दी हुई है, वही हमें मगअप ज्यादा करनी पड़ेगी। बाकी अपने कीवर्ड्स रखो और अपनी लैंग्वेज में लिख दो उसको। मतलब कीवर्ड्स पहले वो याद करके फिर वो अपने कीवर्ड्स याद होने चाहिए और अपनी लैंग्वेज में उसको बना के लिख दो फिर। और मेन थिंग क्या है कि मान लो मैं ही एग्जामिनर हूँ, हमारे एग्जामिनर के पास क्या होता है कि बहुत कम टाइम होता है, कुछ मिनट से होते हैं कॉपी चेक करने के, तो वो पढ़ते हुए पूरा नहीं चेक करता, वो कीवर्ड्स चेक कर रहा है जो तुमने उसको फीड करे है अंडरलाइन करके, मार्किंग करके। सो मेन थिंग इज वो कि फीड करो उसको कि भाई तू यही पढ़ जो मैंने अंडरलाइन किया है, ताकि वो जल्दी जल्दी देखे और आगे बढ़ जाए कॉपी में मार्क्स देते देते। थैंक यू सर। You are appearing in this prelims 2024 में। तो, जैसे सर जो मटेरियल शेयर करते हैं, तो सर जीएस अभी प्रीलिम्स की तैयारी करते टाइम मटेरियल अपडेट नहीं हो पाता है, तो सर वो प्रीलिम्स के बाद जो टाइम पीरियड रहेगा उसमें, प्रीलिम्स के बाद जो टाइम पीरियड रहेगा उसी में हाँ, मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ अपडेट ही करते रह जा रहे हो। जब एक क्वेश्चन बन गया कि अच्छा मेरे पास 2-3 अच्छे एग्जांपल आ गए करंट के, 1-2 स्कॉलर आ गए हैं, बस क्वेश्चन पूरा हो गया, अब नहीं जाना आगे। अब बार बार उसको सिर्फ वो नहीं है कि अपडेट ही करते रहो कि मतलब हाँ ठीक है 1-2 साल पुराने मेरे पास 2-3 एग्जांपल हो गए, 1-2 स्कॉलर हो गए उसमें, बस इससे ज्यादा वो कोई अपडेट करने का वो नहीं है। बाकी सर का मटेरियल उस तरीके से फॉलो करते रहो लास्ट तक कि कोई टॉपिक नया आ जाए। जैसे अर्जुन अप्पादुराई वाला लकीली वो सर ने डाला था, तो एक बार रीड कर लो बस उसको। अर्जुन अप्पादुराई वाले एग्जांपल का फॉर एग्जांपल ग्लोबलाइजेशन की हम जनरली डेफिनेशन लिखते हैं एंथनी गिडन्स कुछ करके, एज पर एंथनी गिडन्स, लेकिन मैंने अपने नोट्स में अर्जुन अप्पादुराई वाली डेफिनेशन उसको अपडेट कर दिया था कि एज पर अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट अर्जुन अप्पादुराई ग्लोबलाइजेशन इज दिस। जैसे सर अगर कोई लेटेस्ट डेफिनेशन या लेटेस्ट केस स्टडी अगर हम लोग को कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मिल गई है, तो उसके बाद उसके लिए वापस ढूंढने की जरूरत नहीं, वापस ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। जैसे अगर कोई लेटेस्ट आ रही है वापस केस स्टडी विद, तो अगर वो याद हो चुकी है पिछली, दैट इज एनफ। सिर्फ अपडेट करने में ही लास्ट तक नहीं अगर एक बार आंसर याद हो गया ना दिमाग में, तो दैट इज बेटर। वो आंसर रखो और उसको यूज कर सकते। एनी अदर डाउट एंथ्रो में? सर आपका पेपर सर मतलब टाइम में पूरा हो गया था, उसके लिए आपने क्या किया था एंड में? जैसे आपने बताया कि आपके टेस्ट पूरे नहीं हो पाते थे, फिर एंड में कैसे किया था? हाँ, उसके लिए टेस्ट पूरे नहीं हो पाते थे, दैट इज द सेम प्रॉब्लम कि जो आंसर में सर ने लिखवाया वो सेम रिप्रोड्यूस करना, टेस्ट इसलिए पूरे नहीं हो पाते थे। उसके बाद मैंने उसमें डायग्राम्स ऐड करे और पूरा बड़ा लिखने की बजाय कि मतलब द प्रोसेस ऑफ दिस की बजाय सीधे हेडिंग डाल दी, ग्लोबलाइजेशन या जो भी है, फिर इम्पैक्ट्स में पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, हेडिंग डाल के फिर लिख दिया उसको। तो ये अपने आंसर राइटिंग में, ये आंसर राइटिंग कर करके आएगा कि कैसे हम टाइम बचाए अपना।
कहाँ पे डायग्राम बना दो, बीच में कहीं पे स्पाइडर डायग्राम बना दिया, पेज भी भर गया इसमें, स्पेस भी निकल गए और अच्छा भी लगेगा देखने में, इस तरीके से। सो ये सब चीजें आंसर राइटिंग से आएगी कि कैसे मैं अपने राइटिंग को कम करूं। और एक और चीज है कि मतलब सर सजेस्ट करते हैं कि 10 मार्कर इतने मिनट में होना चाहिए, 15 मार्कर इतने में और 20 मार्कर इतने में, वो हाँ सो वो आइडियल है ही। बट मैं जो पर्सनली फॉलो करता था कि 1.5 आवर में मैं कितना पेपर कर पा रहा हूँ, देन अगले 1.5 आवर में कितना। तो एक 1.5 आवर के ब्लॉक के बाद साइकोलॉजिकली अपने आप को इंक्रीज कर लो अगर पीछे चल रहे हो तो। अगर तुम 50 मार्कर के सिर्फ 2.5 तक ही पहुंच पाए हो तो अपने माइंड वो करो, स्ट्रॉन्ग करो। सर और जैसे आपने बोला कि आपने ज्वाइन नहीं की थी सर, एंथ्रो के लिए नहीं की थी तो सर टाइम मैनेजमेंट वगैरह वो जो आप घर पे टेस्ट देते थे उसी से होता था? हाँ, उसमें टाइमर लगा के कि मैं जो क्वेश्चंस आपने आंसर्स बनाए हैं उसी क्वेश्चंस के आप आंसर लिखते थे? हाँ, उसी को लिखता था कि पूरी अच्छी तरीके से मुझे मेरे नोट्स एकदम रट गए, कि मुझे मेरे नोट्स एकदम रटे हुए होने चाहिए। ओके, मतलब आप कोई बाहर से कोई इंस्टीट्यूशन का मटेरियल टेस्ट सीरीज का नहीं उठाते? नहीं, किसी भी टेस्ट सीरीज का, किसी और इंस्टीट्यूट का मैंने मटेरियल नहीं उठाया है। मेरे कंप्लीट सोर्सेज सबसे पहले जो वैद सर प्रोवाइड करते हैं इन सर्च ऑफ आवर सेल्स, और सर के जो फोटोकॉपी नोट्स थे फर्स्ट, सेकंड जो सर के व्हाट्सएप ग्रुप पे मटेरियल आता था, थर्ड अक्षर जैन सर की बुक से आंसर के कुछ फॉर्मेट्स और कुछ एग्जांपल्स 1-2 उठाए थे, एंड फोर्थ इज द गूगल, कि उस टॉपिक पे मेरे पास कुछ मिल नहीं रहा। संस्कृताइजेशन की बहुत सारी केस स्टडीज है, अगर कुछ नई मुझे लग रहा था कि कुछ एक नई डाल दूं कुछ ना कुछ, तो फिर वो गूगल कर दो एक बार। इस तरह उपाध्याय एंड पांडे आई स्टडीड टू अंडरस्टैंड द थ्योरीज बेटर। सर कंक्लूजन को कैसे मतलब इम्प्रूव करना है? वर्ड लिमिट, क्योंकि जब भी अभी भी आंसर प्रिपेयर करते हैं काफी सारा डेटा आ जाता है, तो समझ में नहीं आता इसमें क्या हटाना है और क्या रखना है, आंसर लिखते टाइम वो बड़ा ही हो जाता है। मेरे हिसाब से वर्ड लिमिट तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जो क्वेश्चन में पूछा है वही, कि सर तो ऑलरेडी वर्ड लिमिट में ही सारे आंसर डिक्टेट कर रहे हैं, और जो एक्स्ट्रा है सर का ज्यादा होता है, और जो एक्स्ट्रा है वो बेटर ही है ना, किसी और क्वेश्चन में एग्जांपल यूज हो जाएगा। नहीं बट उस समय पे इसको फिगर आउट करना कि क्या हटाना और क्या रखना। जो इज, एम, आर, ए, एन, दा, ऑल दीज थिंग्स हटा के कीवर्ड्स लिख दो। ये सारे आंसर लिख चुका है। और सेकंड थिंग इज कि यार वर्ड लिमिट भी एक काइंड ऑफ पार्शियल मिथ है कि 150 वर्ड्स ही लिखने हैं, और वो सब पार्शियल मिथ इन जीएस में भी पार्शियल मिथ है, क्योंकि वो एग्जामिनर जो है वो काउंट नहीं कर रहा कि 150 वर्ड्स ही लिखे या 250। तुम्हें कहीं ना कहीं वो पेजेस फिल करने और आंसर की डिमांड को फिल करना है, जो आंसर की डिमांड, और इतने में तो तुम्हारे मतलब 100-120 वर्ड्स तो आराम से हो ही जाते हैं 2 पेजेस में। 100-120 हो गए और तुमने एक डायग्राम बना दिया, तो समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं 20-25 वर्ड तो वो डायग्राम में आ गए ना, इस तरीके से। ये मतलब ऐसे काउंट करना तो मतलब कोई चाइल्डिश प्ले ही है। 2021 में 294। सर आपने अभी लास्ट अटेम्प्ट में अपने कोई क्वेश्चन मतलब पूरा ब्लैंक छोड़ा था? नहीं, ब्लैंक कुछ नहीं छोड़ा, ब्लैंक नहीं छोड़ा। सर कंक्लूजन को much Anthro is about retrofitting your knowledge into paper then answering the question. मेन इज की जो तुम्हें एकदम याद हुआ है उसको रिप्रोड्यूस करना इज मोर इम्पोर्टेंट इन एंथ्रोपोलॉजी। अपनी इंफॉर्मेशन पेपर में एग्जैक्टली, ये नहीं देखना कि पेपर क्या कहाँ से तुम क्या कहाँ पे लगा सकते हो, ये देखना है एंथ्रोपोलॉजी में। सर यस सर ये अच्छा कंक्लूजन अगर हमको लिखना है तो उसके लिए क्या मतलब आप क्या करते थे उसके लिए? हाँ, कंक्लूजन मतलब सही से नहीं हो पाता मेरा। अच्छा कंक्लूजन कुछ स्कॉलर्स या रिसेंट रिसर्चेस दे दो, जैसे आर्कियोलॉजी में मैंने फिक्स किया हुआ था कि एसबी होता सर और एमके सिंह सर का कुछ पुरातत्व वाला, वो लास्ट में हर एक उसमें लिख दूंगा। तो 1-2 कंक्लूजन ऐसे बना लो अपने उसमें। रेस में जैसे कुछ नई स्टडी वगैरह चल रही है कि नई 99.99% सेम वाली कंक्लूजन, तो उस तरीके से कंक्लूजन बना लिए थे सबके। जैसे सर कहते हैं कि ट्राइबल के आंसर्स में इमोशनल एंगल डालना चाहिए, कैसे डालते हैं? नहीं, इमोशनल एंगल डालना चाहिए ट्राइबल के उसमें। इमोशनल एंगल लिखते लिखते आ जाता है यार, मतलब कि ट्राइब को पहले तो रेस्पेक्ट ही दो कि दे आर लिविंग इन दिस कंडीशन, इनकी इतनी मिजरेबल कंडीशन है, और वो सब उस तरीके से लिखो। मतलब मैंने क्या किया था, जो मेरा 2021 अटेम्प्ट था उसमें मैंने ट्राइबल के क्वेश्चंस वैसे ही फोकस करे थे पैराग्राफ फॉर्म में, जैसे केस स्टडी और पैराग्राफ फॉर्म में, बट दिस टाइम मैंने पॉइंट वाइज फॉर्म में करे थे।
जो ट्राइबल के क्वेश्चन थे उसमें पॉइंट्स यूज करे थे कि लैंड एलियनेशन हुआ तो उनको एजुकेशन से हटा दिया, मतलब उनके एजुकेशन को इफेक्ट करेगा। एजुकेशन में फिर मैंने एग्जांपल दे दिया कि लिटरेसी रेट ऑफ द एसटी, इसी में एग्जांपल। फिर हेल्थ को इफेक्ट करेगा, हेल्थ में मैंने एग्जांपल दे दिया सहारिया ट्राइब्स ऑफ एमपी का कुछ है उनमें ऐसे इस तरीके से कर रहा था इस बार। हाँ, फूड सिक्योरिटी को अफेक्ट करेगा। और उसके बाद हर एक ट्राइबल के क्वेश्चन में हमें अपने स्टेप्स देने ही है, इनोवेटिव स्टेप्स। एक ट्राइबल से याद आया, पेपर 2 के लिए खाका कमेटी की रिपोर्ट भी पढ़ी थी। खाका कमेटी की रिपोर्ट भी पूरी पेज टू पेज पढ़ी थी। खाका कमेटी की रिपोर्ट याद नहीं होती है, लेकिन एक जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इंडिया में क्या ट्राइब्स है, थोड़ा सा स्टीरियोटाइप खत्म करने के लिए। वी हैव अ स्टीरियोटाइप रिगार्डिंग द ट्राइब्स, तो स्टीरियोटाइप खत्म करने के लिए खाका कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी थी। बट इन द रिकमेंडेशन पार्ट जब क्वेश्चन में देते थे तो अपने 1-2 रिकमेंडेशन अपने देते थे। फॉर एग्जाम्पल अगेन कि ट्राइबल डेवलपमेंट का कोई भी क्वेश्चन था तो मैंने उसमें अपना एक डायग्राम बना दिया था कि 3A मॉडल हमें फोकस करना पड़ेगा ग्रास रूट डेवलपमेंट के लिए। 3A में एक आशा वर्कर्स, एक आंगनवाड़ी वर्कर्स और एक ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स। अब ये वाला डायग्राम मैं एंथ्रो में भी यूज करा है मैंने, ये GS2 में भी करा है, GS3 में भी करा कि वी नीड टू ऑगमेंट दिस 3A मॉडल एट द ग्रास रूट लेवल फॉर द डेवलपमेंट। सो इस तरीके की चीजें जो अपना आपका कुछ भी एग्जांपल है तो वो पुट करना अच्छा है रिकमेंडेशंस में इन ट्राइबल। एनी अदर डाउट? सर ये ट्राइब के आंसर की पॉइंट्स में लिखने में थोड़ा मैकेनिकल नहीं हो जाते हैं? मतलब मुझे कंफर्टेबल होता था उसमें, डिपेंड करता है। पैराग्राफ में अगर आप जस्टिफाई कर पा रहे हो तो बेटर है। पॉइंट्स में भी मैं मतलब पॉइंट लिखा, उसमें एग्जांपल जरूर दे रहा हूँ कि एग्जांपल ये वाले ट्राइब के साथ इतनी उसकी लिटरेसी रेट है या इतना उसका वो एग्जांपल दे रहा हूँ उस पॉइंट में। पॉइंट तो जस्ट हेडिंग के लिए है, उस पॉइंट को अंडरलाइन कर दिया, फिर एग्जांपल को बॉक्स करके फिर ट्राइब का इस तरीके से ऐसे। Sir, what structure did you follow for your answers? Most of them were paragraph oriented or point oriented. एंथ्रो में ज्यादा तो पैराग्राफ ओरिएंटेड ही है, पेपर 1 तो पूरा ही पैराग्राफ ओरिएंटेड ही चलता है। और जहाँ पे पॉइंट्स हो सकते हैं वहाँ पे पॉइंट्स मतलब बहुत सर ऑलरेडी देते हैं कि आंसर का क्या फॉर्मेट रखना चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं ना कि when you are having time crunch, हाँ, you तो resort पॉइंट्स में कर to दो। eliminating all the Exactly. unnecessary words. So in that case, points structure से टूट जाता है पूरा। पॉइंट्स में लिख दो यार, कुछ मार्क्स देगा वो। मतलब टाइम के क्रंच से पूरा क्वेश्चन छोड़ने की बजाय कुछ तो देगा ही वो, अगर पॉइंट्स में तुम लिख दोगे इस तरीके से पॉइंट्स बना बना के। ये अल्टीमेटली ये है कि हमें पूरा पेपर करना है, किसी तरीके से पूरा पेपर करना है। उसमें से भी जो 70-80% जो हमारे ही नोट्स में से है वो तो बिल्कुल ही सेम रिप्रोड्यूस करना है हमें वहां पे, फिर मार्क्स आएंगे। सर यस सर, आपने मतलब किसी टॉपर नोट्स को यूज किया था, मतलब सर के मटेरियल? सर की बुक करी थी, उसके अलावा तो कुछ नहीं करा। एंथ्रोपोलॉजी के लिए कुछ नहीं करा। सर आपने सर प्रीलिम से पहले एंथ्रो कब मतलब पढ़ना बंद किया था? प्रीलिम से 2 महीने पहले लगभग मैंने एंथ्रो रख दिया था फिर। ओके सर। सॉरी, जून में हमारी ऑनलाइन बैच शुरू हुआ था। जून से लेके अब तक मैं एंथ्रो में लगा रहा। 2021 में फिर प्रीलिम्स हमारा डिले हो गया था लगभग 4 मंथ्स। सो उसके बाद फिर से मैंने एंथ्रो में लगा रहा था। 2 से 3 महीने पहले प्रीलिम्स के मैंने फिर एंथ्रो को रोक दिया था। मतलब फॉर ऑलमोस्ट एन ईयर लगा रहने का इन द सेंस कि फर्स्ट जो था वो तो फर्स्ट 5 to 6 मंथ्स में ही कंप्लीट हो जाता है कि एक नोट्स बेसिक हाथ में आ जाते हैं। लेकिन जो सर न्यूज डाल रहे हैं वो रीड फिर इकट्ठा हो जाएगा, वो फिर कभी हमारे कंप्लीट होता नहीं है। जो नोट्स होंगे वो इकट्ठे होते चले जाता है। स्टडी मटेरियल उसको डेली करता ही था, फिर 1-2 घंटे एंथ्रो को लगाता ही था। जो मटेरियल आया उस दिन वो कंप्लीट हो जाए किसी भी तरीके से, वो फिर अपने उसमें। और सर जैसे आपने बोला कि खाका की रिपोर्ट आपने पूरी पढ़ी, तो जैसे सर की प्रिंटेड मटेरियल्स में खाका की रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस है, जैसे ट्राइबल एजुकेशन में है, ट्राइबल हेल्थ में है, उसके बाद भी आपने अलग से पूरी रिपोर्ट पढ़ी? खाका
हाँ मैंने, या तो वो पढ़ लो या खाका की रिपोर्ट पढ़ लो, एक ही बात है। एक बार मैंने रीड कर ली थी खाका कमेटी की रिपोर्ट। हाँ और कुछ नहीं है। नहीं, ट्रूली स्पीकिंग खाका कमेटी की सिर्फ रिकमेंडेशंस ही है, बाकी और कुछ नहीं है। वो भी सिर्फ नाम के लिए कि एज पर खाका कमेटी रिपोर्ट, और कुछ भी तुम्हारे दिमाग में जेनेरिक रिकमेंडेशंस होंगे तो वो खाका ने दिए ही होंगे। हाँ अब वो अच्छा पॉइंट है। डॉक्टर बी डी शर्मा वाली सर ने कुछ लाइन बताई है, वो सिर्फ सर ही बताते हैं, और वो भी मैंने इंक्लूड, वो कंक्लूजन मेरा वही होता था। एक कंक्लूजन था कि मेरा एज पर डॉक्टर बी डी शर्मा अ ट्राइबल कैन टेक अ लॉग और टू ऑफ अ वुड नॉट मेकिंग द मेंशन, ऐसा कुछ था उनके बी डी शर्मा सर का वो। तो वो बीडी कंक्लूजन मैंने बी डी शर्मा सर वाले ही दिए थे ट्राइबल में। तो ये सब जो चीजें है कि बी डी शर्मा जैसे और किसी स्टूडेंट के पास नहीं है, ये आपकी कॉम्पिटिटिव एज है। तो ये सब कहाँ से है? सर के उससे मिल रहा है। तो ये सब चीजें फॉलो करो तो मार्क्स अपना आप ही बढ़ जाएंगे। एज पर डॉक्टर बी डी शर्मा ब्रैकेट में फॉर्मर कमिश्नर SC/ST। सर आपने सर के दिए हुए क्वेश्चंस के अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बनाए थे कुछ? सर के दिए हुए क्वेश्चंस के अलावा जो टॉपिक सिलेबस का मतलब नहीं कवर हो पाया उस पे बस शॉर्ट नोट टाइप के बनाए थे। बाकी आई विल शेयर माय नोट्स इन फ्यू डेज ऑन द टेलीग्राम चैनल। ओनली दिस वीक आई एम इन दिल्ली, सो देखते टाइम मिलता है तो बाकी रेफर कर सकते हैं। सर जीएस का क्या आपने? आपने बैकलॉग को कैसे मैनेज किया था? अगर बैकलॉग हो जाते थे कोई टॉपिक? छोड़ दो उसको, बोल रहा टाइमिंग छोड़ दो, क्योंकि बैकलॉग में रहोगे तो नया नहीं समझ आ पाएगा। आगे जाके कहीं ना कहीं टाइम देना पड़ेगा। ये टेलीग्राम चैनल है T.me। हाँ सर, वो टेलीग्राम में ऐसे अच्छा, ये नहीं मेरे को क्या बताओ, illiterate, technologically illiterate. Now the last ritual that is left, you know that all the successful who are there in IAS, IPS, FS, we return their fee. But because it was an online payment, so obviously we will be sending it online. So sir, please give your account number to Antim sir and find out whether it is transferred or not officially. उधर बता दो उधर वही। हाँ सर, वो बात नहीं फिर आप उधर बात करो। तो सर जी वो हो गया? हाँ इट इज बुधा की बोलो ना माइक के साथ हैं। गॉड ब्लेस यू। ठीक है, तो फाइनली वील थैंक सर for being a glory and for his success. We congratulate. God bless you all. Now it is your turn to show it off. You have to one day. Thank you, sir.